अस्सलाम स्टूडेंट्स, एज वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक ऑफ एएनएस फार्माकोलॉजी और एएनएस फार्माकोलॉजी में हमने बहुत सारे पॉइंट्स पे मुख्तलिफ ड्रग्स के नेम्स पढ़े हैं विच ईदर आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्लाउकोमा और दे आर ईदर यूज्ड टू एग्रीवेट द ग्लाउकोमा। लेकिन ये ड्रग्स मतलब कि मुख्तलिफ ड्रग्स अफेक्टेड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, हाउ दे आर यूज टू ट्रीट ग्लाउकोमा या हाउ दे आर यूज टू एग्रीवेट ग्लाउकोमा, वो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। बट बिफोर दिस वी शुड नो दैट व्हाट इज़ ग्लाउकोमा। और ग्लाउकोमा को भी जानने से पहले इट इज़ नेसेसरी कि आई का जो इंट्राओक्यूलर या एक्वस ह्यूमर का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो क्या है। सो हेयर वी हैव द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ आई। आई में जब हम फ्लूइड्स को देखते हैं देन वी हैव विट्रस ह्यूमर एंड एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर जो है इट इज़ प्रेजेंट इन द एंटीरियर चैम्बर एंड posterior chamber of the eye. Anterior chamber is present between the cornea and iris, while the posterior chamber is located between iris and lens and suspensory ligament of eyes. And the vitreous humor of the eye is located between the lens, suspensory ligament and between the retina. अब एक्वस ह्यूमर जो है उसका फंक्शन क्या होता है। एक तो उसका फंक्शन ये है कि इट इज़ यूज फॉर नरिशिंग द इनर सरफेस ऑफ कॉर्निया, और दूसरा इसका फंक्शन ये इट इज़ यूज फॉर मेंटेनिंग द इंट्राओक्यूलर प्रेशर ऑफ द आई। मतलब कि किस तरह से कि इंट्राओक्यूलर फ्लूइड जो है विच इज़ प्रेजेंट इन आई कीप्स द आई बॉल्स डिस्टेंडेड so that the optical function of the eye could be performed efficiently. In this video, we would be discussing about the formation of aqueous humor, circulation of aqueous humor, and then finally the drainage of aqueous humor. अब जब formation होती है aqueous humor की in our eye, which occurs by the ciliary body, and ciliary body consists of ciliary epithelium, ciliary muscles, and ciliary stroma. अब ये जो सीलरी एपिथेलियल सेल्स होते हैं इन पे होता है सोडियम पोटाशियम पंप विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग सोडियम आउटवर्ड्स। अब जब सोडियम आउटवर्ड्स पंप होंगे बाय द मीन्स ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पॉजिटिव आयंस का इफ्लक्स होगा फ्रॉम सीलरी एपिथेलियल सेल्स, it would result in decreasing the positivity inside the ciliary epithelial cells. As a result, the negativity inside the ciliary epithelial cells would increase, और अगर negativity increase हो जाएगी inside the ciliary epithelial cells तो passive movement होगी of negative ions such as chloride ions and bicarbonate ions into the posterior chamber of the eye. अब सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस एक्यूमुलेट हो गए as they are secreted from ciliary body into the posterior chamber of the eye. So these ions would result in increase in the osmotic pressure. अब अगर osmotic pressure increase होगा तो it would result in the secretion of water from the ciliary body into the posterior chamber of the eye. अगर water secrete होगा from the ciliary body into the posterior chamber of the eye, it would also result in the secretion of molecules like glucose and amino acids. And as aqueous humor consists of molecules like glucose and amino acids, so we can say that aqueous humor is responsible for nourishing the various parts of the eye. अब यहाँ पे जो है aqueous humor की formation complete हो गई. So we can say that कि ciliary body जो है it first of all secrete the aqueous humor into the posterior compartment of the eye. फिर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट से वो फ्लो करता है बिटवीन द आइरिस और मूव करता है इनटू द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आई. So now here as up till now we have discussed about the formation of the aqueous humor. Now let us know about the circulation of the aqueous humor in our eyes.
Here we have anterior compartment between cornea and iris. Here are the dilator muscles of the iris and sphincter muscles of the iris. And here is the lens, and between lens, suspensory ligament and iris we have the posterior compartment of the eye. Here we have ciliary body with ciliary muscles, ciliary stroma, ciliary epithelium. अब ciliary body ने प्रोड्यूस कर दिया है aqueous humor into the posterior compartment of the eye. Now aqueous humor which is secreted into the posterior compartment of the eye would flow between the iris and lens, then it would flow above the iris and then reach the choroido-ilial angle. अब जब ये रीच करता है ऑन द choroido corneal angle, यहाँ पे अब इसकी एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज होनी है इनटू द श्लीमेन केनाल. अब जो श्लीमेन केनाल होती है ना, इट इज़ सर्कुलर और इसके इर्द गिर्द ट्रेबिकुलर मेशवर्क होता है. एंड दिस ट्रेबिकुलर मेशवर्क इज प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन ऑब्स्ट्रक्टिंग द श्लीमेन केनाल एंड ब्लॉकिंग द पैसेज ऑफ एक्वस ह्यूमर इनटू द श्लीमेन केनाल. अब ये किस तरह से होता है डेट वुड बी डिस्कस्ड इन द लेटर वीडियो कि जब ट्रेबिकुलर मेशवर्क फाइब्रस हो जाता है तब ये मतलब कि श्लीमेन केनाल को या आई के जो ड्रेनेज सिस्टम है ऑफ एक्वस ह्यूमर उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है. फिलहाल श्लीमेन केनाल इज सर्कुलर, उसके इर्द गिर्द ट्रेबिकुलर मेशवर्क है एंड ट्रेबिकुलर मेशवर्क इज ऑल्सो परमेबल टू द फ्रीली फ्लोइंग एक्वस ह्यूमर. अब choroido-ilial कॉर्नियल एंगल पे एक्वस ह्यूमर जो है हमारा फ्लूइड उसकी ड्रेनेज होनी है. ड्रेनेज किस तरह से होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्वस ह्यूमर वुड पास थ्रू द ट्रेपिकुलाई विच आर प्रेजेंट अराउंड द श्लीमेन केनाल, एंड आफ्टर दैट द एक्वस ह्यूमर वुड एंटर द श्लीमेन केनाल. और श्लीमेन केनाल है ना, इट इज associated with specific type of channels which are known as collector channel. तो एक्वस ह्यूमर फिर कलेक्टर चैनल्स के थ्रू फ्लो करेगा और कलेक्टर चैनल्स के बाद ये वीनस सिस्टम में एंटर हो जाएगा. किस तरह से? फर्स्ट ऑफ ऑल इट वुड मूव इनटू द एक्वस वेन, देन इनटू एपिसेक्युलर वेन, एंड देन इनटू द लार्ज एक्स्ट्रा ऑक्यूलर वेन्स, एंड देन फाइनली एंडिंग इनटू द ऑप्थेल्मिक वेन्स. तो ये मेन ड्रेनेज सिस्टम है ऑफ एक्वस ह्यूमर थ्रू द श्लीमेन केनाल. तो हम मेन सिस्टम जो है फॉर द ड्रेनेज ऑफ द एक्वस ह्यूमर थ्रू द श्लीमेन केनाल वो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसके अलावा एक्वस ह्यूमर की ड्रेनेज का एक और भी पाथवे होते हैं इन आर आई. वो किस तरह से होता है कि एक्वस ह्यूमर जो है इट कैन ऑल्सो ड्रेन इनटू द सीलरी बॉडी. अब सीलरी बॉडी में ये ड्रेन करेगा तो हमारे सेक्युलरा और रेटिना के दरमियान कोरॉइड होता है. फाइन, कोरॉइड बीच में, उसके ऊपर सेक्युलरा, नीचे रेटिना. फाइन. तो फिर ये जो है ना एक्वस ह्यूमर इट वुड फ्लो इनटू द कोरॉइड. कोरॉइड के ऊपर जैसे कि सेक्युलरा होता है तो कोरॉइड के बाद इट वुड फ्लो इनटू द सुप्राकोरॉइडल स्पेस. और सुप्राकोरॉइडल स्पेस में फ्लो करने के बाद इट वुड रीच इनटू द सेक्युलरा, और सेक्युलरा में इट वुड फाइनली ड्रेन इनटू द सेक्युलर वीनस प्लेक्सस. एंड दिस वे the drainage of aqueous humor in our eye is completed. So this was all about today's topic. Hope you understood well. Thanks for watching.